salutation to the God. God means actually the experience of the sound sleep. For the example, the experience of sound sleep. We can realize about the God from the example of sound sleep. When we remember the experience of sound sleep, that is the experience of the God. Because when we remember the experience of the sound sleep, that means only the experience of the knowledge, knowledge of consciousness, knowledge of consciousness. There means in sound sleep, what we realize, that realize is the experience of the God. Because that is the experience of the knowledge of God, knowledge of consciousness, which lives always, which remains always for all. All means all the people of the world to realize the God. The best example is the example of sound sleep. If we live, if we remain, if we stay, if we remember always, if we feel remembering the experience of sound sleep, exactly that is the experience of the God. The experience of immortal God. There is no ignorance. When we remember the experience of sound sleep, in that experience there is no ignorance, from where cannot arise oral, from where we cannot experience the old. Only we can realize only the experience of God according sound sleep. There means in sound sleep, except there whatever we realize of the world, that is like dream, exactly dream. World is exactly dream. The experience of the world does not give help for us at the time of death. At the time of death, we cannot get any help from the world.
we can get a fully help from only the remembering the experience of the sound sleep. So, for all who want to stay as a immortal, who want being God as a salvation, the example of sound sleep, very, very important for all. Very easy way. This way, the best easier. So, very good example of sound sleep for the realization of the God at every time, on all the time. All the time means up to our death coming, up to our death period. It helps us to realize the experience of the God, remembering always the experience of sound sleep. Now I describe in Hindi language. सभी को अभिवादन, परमात्मा को अभिवादन। परमात्मा के अनुभव के लिए सुषुप्ति का याद अर्थात गाढ़ा निद्रा का याद सबसे लाभकर है, सबसे सरल है, सबसे सरल तरीका है, सबसे जल्दी भगवान का अनुभव करने का साधन है। ये जो है वेदांत फिलोसॉफी के अनुसार ये वर्णन है। जो वेदांत दर्शन है उसका वर्णन के अनुसार ही ये वर्णन है। सुषुप्ति का अनुभव, गाढ़ा निद्रा का अनुभव, वही अनुभव हम लोगों को काम देता है हरदम। जब तक मौत न आ जाए, जब तक शरीर का मरण नहीं आ जाता है, तब तक याद उसी को करे। गाढ़ा निद्रा जो सुषुप्ति है, जिसको इंग्लिश में साउंड स्लीप कहा जाता है, साउंड स्लीप जो अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है, उसका हिंदी का अर्थ है सुषुप्ति या गाढ़ा निद्रा। वही काम दे देगा, हरदम वही काम दे देगा परमात्मा को हरदम याद करने के लिए, हरदम परमात्मा के रूप में रहने के लिए, हरदम परमात्मा की याद करके रहने के लिए अचूक उपाय है, निश्चित उपाय है। सुषुप्ति का याद करते रहना, क्योंकि सुषुप्ति का याद में रहना है जीवन मुक्त का प्रमाण। सुषुप्ति का याद करते रहना है देह मुक्त का प्रमाण। ये वेद का सार जो वेदांत है, बृहदारण्यक उपनिषद आदि जो शास्त्र है, उनका कहना है। केवल उनका कहना नहीं है, बल्कि ये अनुभूति का बात है। अगर जो कोई भी चाहे इसका अनुभव करने के लिए, जो कोई भी कर सकता है, जो कोई भी लाभ उठा सकता है, जीवन होकर भी जीवन मुक्त के रूप में रहने का क्षमता मिल जाता है। शरीर जो नाश की तरफ भाग रहा है, हम लोगों का शरीर जो मौत के तरफ कूद रहा है, दौड़ रहा है, उससे हम लोगों को
वास्तव में शांति सुख नहीं मिलेगा, उसमें तो राप ताप मिलेगा, चिंता दुख डर मिलेगा। इसलिए हम लोगों का राहत, हम लोगों का सुख का अनुभव, आनंद का अनुभव केवल मिलेगा सुषुप्ति को याद करने पे, क्योंकि जो अनुभव होता है वो साक्षात परमात्मा का अनुभव है। इसलिए सुषुप्ति जो गाढ़ा निद्रा है उसको बार बार ले लें, बार बार नहीं, केवल बार बार नहीं, हर मिनट में ले लें, केवल हर मिनट में नहीं, हर सेकंड में ले लें, पल पल में ले लें उसका याद, सुषुप्ति का याद, गाढ़ा निद्रा का याद, साउंड स्लीप का याद। क्योंकि जागृत अवस्था में सुषुप्ति का जो याद हम लोग करते हैं, जब जब करते हैं तब तब जो है परमात्मा का ही अनुभव है, एक गारंटी है। इस बात को वेदांत का कहने का मुताबिक कोई दूसरा काट नहीं सकता है, यथार्थ है। क्योंकि शरीर की तरफ ध्यान अगर ले जाएं, अगर संसार के तरफ ध्यान ले जाएं, कोई आनंद मिलने वाला नहीं है। चाहे 50 वर्ष उसमें डूब जाए, चाहे 100 वर्ष संसार में डूब जाए, लेकिन आनंद, जो सुख शांति, जो स्वाभाविक सुख शांति है, वो मिलने वाला नहीं है किसी को भी। बल्कि बुढ़ापा आ जाएगा, बाल सब फूल जाएगा, सफेद हो जाएगा और कुरूप में बदल जाएगा, मौत का समय आ जाएगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि रसरी में जिस तरह से सांप खड़ा हो जाता है, वैसा ही परमात्मा में उसका अज्ञान के कारण संसार पैदा हो रहा है। उससे वास्तव में शांति किसी को भी दुनिया में कभी भी नहीं मिल सकता है, यथार्थ है। इसको नेपाली भाषा में भी वर्णन करें, सबैलाई अर्थात् भगवानलाई अभिवादन, परमात्मालाई अभिवादन। परमात्मा नै हो हामीहरूको सुखको केन्द्र, सुख पाउने मुख्य ठाउँ। परमात्मा नै हो हाम्रो मुख्य स्थान, जहाँबाट हामीले आनन्द अमरता परिपूर्णता पाउन सक्छौं। यो कुरा संसारका हामी सबैलाई, चाहे हामी पढेका होला नपढेका होला, चाहे बच्चा होला युवा होला वृद्ध होला गरीब होला धनी होला, जो कोही होला, तर जो गाढा निद्रा जो सुषुप्ति हो त्यसको याद हामीले गरिराख्यौं भने त्यो अनुभव हो साक्षात परमात्माको अनुभव। यो वेदको सार वेदान्त जो उपनिषद दर्शन हो, बृहदारण्यक आदि उसको भनाइ हो, यथार्थ हो। यो अनुभवको वाक्य हो, अनुभूतिको अभिव्यक्ति हो, यसमा कुनै शंका छैन। त्यसकारणले गाढा निद्रा जो सुषुप्ति हो, जो संसारका सबैलाई सधैँ अनुभव भइरहेको कुरा हो, त्यसलाई हामीले उपयोग गर्नु पर्यो। जुन आज अघि त्यसै खेरा गइराखेको थियो, त्यसलाई हामीले 100% उपयोगमा ल्याउनु पर्यो, त्यसको याद गर्नु पर्यो, किनकि त्यो याद हो परमात्माको याद। परमात्माको यादमा रहेपछि हाम्रो सारा चिन्ता दुःख डर एकैचोटि समाप्त हुन्छ र सधैँ दुःख रहित केवल आनन्द मात्रको अनुभव सधैँ सधैँ भइरहन्छ। यस्तो ग्यारेन्टी सुषुप्तिको स्मरणबाट सबैको लागि हुन्छ, यसमा कुनै शंका छैन। त्यसकारणले यसलाई पूरा विश्वास गरेर हामीले सिरोपर गरेर यसको अनुभवमा हामीले दैनिक गर्यौं भने
फेसबुकहरू हेर्न छाडेर सुषुप्तिको अनुभवलाई, गाढा निद्राको अनुभवको यादमा हामी रहिरहन सक्यौँ भने हामीले साक्षात् परमात्मालाई भेटाउँछौँ। परमात्मालाई भेटाएपछि हाम्रो सबै कुराको समाधान हुन्छ, जसले गर्दा यो संसारमा पनि उन्नति हुन्छ र परलोकमा पनि परमोन्नति हुन्छ। यो हो आजको लागि हाम्रो सबैभन्दा राम्रो उपदेश। आज भन्नाले विक्रम सम्वत 2081 साल महिना हो आश्विनको आज 8 गते, आज मङ्गलबार। According English date 2024 month, that is September 24, the day Tuesday, according Tithijam, Ashwin कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि मंगलवार। ये सब हम सुन रहे हैं, कह रहे हैं। बलराम जी से अध्यक्ष अखंड सुख केंद्र नेपाल देश से, नेपाल भैरवा से और रेडियो एफएम से हम लोग सुन रहे हैं, कह रहे हैं। फ्रॉम रूपन्देही एफएम फ्रॉम भैरवा, रेडियो परासी, श्रीनगर एफएम फ्रॉम पाल्पा तानसेन, मुक्ति एफएम फ्रॉम बुटोल। जो हम लोग ने अभी कह रहे हैं, सुन रहे हैं, वो है परमात्मा में साक्षात हरदम रहने के लिए सुषुप्ति का साधन उपयोग करें, इस्तेमाल करें, अनुभव में लावें। हरदम परमात्मा के साथ हम लोगों का वैसा ही बिना प्रयत्न हरदम के लिए मुक्ति के रूप में, मोक्ष के रूप में मिल ही जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। हरिओम दर्शक।